Hello viewers, today I am going to tell you about the conditional statement of JavaScript. As in previous lecture I told you several things about the JavaScript programming, script programming, and now today I will tell you the conditional statement of JavaScript. Very often when you write a code you want to perform a different action for different decision. Why we create the condition? Because we want to create the decision according to our requirement. You can use conditional statement in your code to do this. Why we use the conditional statement? To do different things. In JavaScript, we have the following condition statement. Now, what are the statement? Use if to specify a block of code to be executed if a specified condition is true. Why we use if? To specify condition is true. Use else to specify the block of code to be executed if the same condition is false. So if we will send you on the condition which is true, and else will send you on the condition which is false. Use else if to specify a new condition to test if the first condition is false. Suppose the first condition is false and you want to make a new condition for that to get the true answer, then we have to specify the else statement, else if statement. Then next, when you have a several conditions, then no option to use the switch. Use switch to specify many alternative blocks of the code to be executed. अब हमारे पास ढेर सारी कंडीशन है तो उसको चेक करने के लिए हमें स्विच की स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है. JavaScript if else and else if condition statement are used to perform a different action based on the different condition. Now I will tell you one by one all these conditions. First condition is if statement. Use the if statement to specify a block of JavaScript code to be executed if the condition is true. So find out the syntax of this if statement. Syntax is if condition curly bracket block of the code to be executed if the condition is true, and then close the curly bracket. Note that if it is in lower letter, upper letter will generate a JavaScript error. You always write in a small letter, don't write in a big letter. Display good day if the R is less than 18. अगर 18 से कम है तो R तो गुड डे दे, अगर अदरवाइज गुड इवनिंग दे. तो ये कंडीशन हम लोग को बनानी है. तो हम लिखेंगे इफ न्यू डेट विल गिव यू अ करंट डेट, देन गेट आर. आर मतलब घंटा, 24 घंटा होता है, उसमें से 18 घंटा से कम अगर आता है तो क्या करेगा वो गुड डे देगा. अदरवाइज मतलब 6 बजे तक वो गुड डे देगा. गेट आर लेस देन 18. डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय id demo in HTML good day. So it will give a good day if the r is less than 18. Let's see how it will give. Here display good day if the r is less than 18. अभी क्या बज रहा है? अभी तो टाइम नहीं हुआ है, 18 से कम है, इसलिए वो गुड डे दे रहा है. नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज एल्स स्टेटमेंट. यूज द एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई the block of code to be executed if the condition is false. हमने बताया था कि else में क्या करेगा, जब false होगा तभी आएगा. So write the condition. अब syntax क्या है उसका? If condition curly bracket block of the code to be executed if the condition is true. हमने क्या बनाया है यहाँ पे? if बना करके get r less than 18 है तो यहाँ आएगा. otherwise block of code to be executed if the condition is, अगर 18 से कम नहीं है तो
दूसरे वाले पे आएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? क्लिक द बटन टू डिस्प्ले द टाइम बेस ग्रीटिंग। अब यहाँ पे एक बटन उसने बनाया और बोला जब उसको आप क्लिक करोगे तो आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। अब हमने कंडीशन बनाया, वेरिएबल बनाया, वेर आर इक्वल्स टू न्यू डेट गेट आर। पहले क्या कर रहे थे? सिंपल प्रिंट कर दे रहे थे। अभी हम फंक्शन बना रहे हैं। ऑन क्लिक पे माई फंक्शन पे जाएगा, जहां पर वो चेक करेगा कि वेरिएबल आर इक्वल्स टू असाइन करेगा न्यू डेट गेट डॉट गेट आर। अब इसको असाइन करेगा, जो घंटा रहेगा वो आर में चला जाएगा। अब वेरिएबल ग्रीटिंग लिया हमने। अब ग्रीटिंग जब लिया तो उसमें आएगा या तो गुड डे या तो गुड इवनिंग। उसमें वेरिएबल असाइन कर देगा। आर इज लेस देन 18 तो गुड डे, अदरवाइज गुड इवनिंग। अब हमने ये देखेंगे कि क्या आता है। आएगा गुड डे क्योंकि अभी तो दिन ही है, और कंट्रोल भी करके हम देखेंगे। अब हमें देखो बटन मिला, ऑन क्लिक इट विल गिव यू अ गुड डे बिकॉज इट इज लेस देन 18 आवर। Next is else if. If the condition is not true and you have to check the more condition, more than two condition, then you have to write else if statement. Use the else if statement to specify a new condition if the first condition is false. अब दो से ज्यादा कंडीशन होगी तब else if यूज करेंगे। यहाँ पे आया if condition 1 block of code to be executed if condition 1 is true, else if condition 2 block of code to be executed if the condition is false and condition 2 is true। जब else if करेंगे तो पहले else if की true condition आएगी, फिर false condition else में जाएगी। तो यहाँ पर पहले ट्रू कंडीशन चेक करेंगे, फिर एल्स पे जाएगा। ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन 1 इज फॉल्स एंड कंडीशन 2 इज आल्सो फॉल्स। अब हमारे पास तीन कंडीशन हो गई ना, पहली ट्रू हो गई, फिर दूसरे की ट्रू हो गई, फिर तीसरी दोनों की फॉल्स हो गई। तो जब दो फॉल्स हो और दो ट्रू हो तो एल्स इफ यूज होगा। अब हमने कंडीशन बनाई, क्लिक द बटन टू गेट द टाइम बेस ग्रीटिंग। हमने कंडीशन क्या बनाई? वेरिएबल ग्रीटिंग, वेरिएबल टाइम न्यू। अब क्या हुआ? ग्रीटिंग एक वेरिएबल जैसे पहले लिया था लिया, फिर टाइम लिया जिसमें हमने घंटे को असाइन किया। न्यू डेट डॉट गेट आर लेने से क्या होगा? घंटा आ जाएगा। अगर टाइम 10 से कम है तो गुड मॉर्निंग, 10 बजे से पहले क्या हो? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एल्स इफ टाइम इज लेस देन 20 तो गुड डे। और अगर दोनों नहीं है तो गुड इवनिंग। अब तीन कंडीशन हो गई ना, दो ट्रू है एक फॉल्स है। तो ट्रू वाले में टाइम लेस देन 10 है तो गुड मॉर्निंग, अगर लेस देन 20 है तो गुड डे, और अगर दोनों नहीं है तो गुड इवनिंग आएगा। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है। तो इस समय तो गुड मॉर्निंग आएगा, देखते हैं क्या आता है। ये आया, क्लिक द बटन टू गेट द टाइम। गुड मॉर्निंग आएगा क्योंकि 10 बजे के पहले का है टाइम, और अगर देर का होता तो गुड डे आता। नाउ नेक्स्ट कम द स्विच स्टेटमेंट। अब तीन से ज्यादा कंडीशन है तब हमारा क्या यूज होगा, या ढेर सारी कंडीशन है तो हमारा स्विच स्टेटमेंट यूज होगा। द स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशन। अब एक से ज्यादा, तीन से ज्यादा हमारे कंडीशन है तो हम स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे जो डिफरेंट एक्शन पे डिफरेंट कंडीशन को परफॉर्म करेगा। जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट use the switch statement to select one of many code block to be executed. Syntax switch expression। अब हम एक्सप्रेशन देंगे और केस लगा देंगे। इसमें क्या करना पड़ता है? कंडीशन के लिए इफ लगाने की जगह केस लगाते हैं। केस एक्स, केस वाई, केस 1 2 3 4 जो भी लेते हैं। और
लास्ट में जब कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रेक लगाते हैं, और मान लो कोई भी कंडीशन नहीं दिया तो डिफॉल्ट लगाते हैं। ये इसका सिंटैक्स है। तो डिफॉल्ट कोड में वो कह देता है कि नन ऑफ कंडीशन इज ट्रू, या ब्रेक लगा देंगे वहां पे तो बाहर कंडीशन के बाहर आ जाएगा, अदरवाइज घूमता रहेगा। दिस इज हाउ इट वर्क। द स्विच एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड वंस द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर विद द वैल्यू ऑफ ईच केस. If there is a match, the associated block of code is executed. If there is no match, the default code block is executed. अगर कोई मैच नहीं मिलता तो डिफॉल्ट में आएगा, अदरवाइज उस वाले कोड में जाएगा जहां पर मैच मिल गया, और हर केस में ब्रेक लगाएंगे जिससे कि जैसे ही मैच मिले वो एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए। तो अब इसको कैसे देंगे? डेमो 3 हमको संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे निकालना है। तो हमने वेरिएबल डे लिया, जैसे हमेशा आर ले रहे थे, अब डे ले लिया, और न्यू डेट डॉट गेट डेट किया। न्यू डेट से डेट डे को निकाला। डे हमारा नंबर फॉर्म में आएगा। अब नंबर 0 से संडे शुरू हुआ, तो 0 है तो संडे हो जाएगा, 1 है तो मंडे हो जाएगा, 2 है तो इस तरह से सैटरडे तक जाएगा। ठीक है, और जो दिन होगा वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, टुडे इज प्लस डे। अब जो डे होगा वो प्रिंट हो जाएगा। कैसे होगा? टुडे इज मंडे। मेरी वॉच लेट है तो वो एक दिन पीछे दिखा रहा है, तो टुडे इज मंडे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? द ब्रेक कीवर्ड। अगर हमारा इसमें ब्रेक कीवर्ड नहीं होता तो एग्जीक्यूशन बाहर नहीं निकलता। तो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है? जहां पे कंडीशन ट्रू हो जाती है वो वहां से प्रोग्राम को ब्रेक कर देता है। When JavaScript reaches the break keyword, it break out the switch block. This will stop the execution of inside the block. It is not necessary to break the last case in the switch block. The block break there anyway. और अगर नहीं देते हैं तो कोई भी तरह से वो एंड कर जाएगा। इफ यू omit the break statement, the next case will be executed even if the execution does not match the case. अगर केस नहीं मिलता है और ब्रेक नहीं देते तो वो दूसरे उसमें चला जाएगा कंडीशन में। डिफॉल्ट कीवर्ड, द डिफॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाई द कोड टू रन इफ देयर इज नो केस मैच। अब मान लो कोई भी दिन समय नहीं मिल रहा है, कोई भी कंडीशन नहीं मिल रही, तो वो कहाँ जाएगा? डिफॉल्ट पे। तब डिफॉल्ट कैसे लिखते हैं? केस लिखते हैं, 6 से 0 लिख दिया, सैटरडे संडे हो गया, और डिफॉल्ट में लिखा लुकिंग फॉरवर्ड टू वीकेंड। अब कुछ नहीं मिला तो उसने लिख दिया कि लुकिंग फॉरवर्ड टू वीकेंड। द रिजल्ट ऑफ टेक्स्ट विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू वीकेंड। कुछ भी नहीं देगा तो वीकेंड दे देगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? सेम वे से लिखेंगे, बस डिफॉल्ट भी ऐड कर देंगे, है ना। Default is not the last case in the switch block. Default is not the last case of the switch block. Remember to end the default case with break. अब उसको हर में मान लो ब्रेक भूल गए, लेकिन उसमें ब्रेक देना जरूरी है। ठीक है, common code block. Sometime you will want different switch cases to use the same code. In this example, 4 or 5 share the same code block and 0 and 6 share another code block. अब अगर सेम स्विच केस होगा और उसमें सेम कंडीशन होगी तो पहले वाले केस को वो ले लेगा। केस 4 में सून इट इज वीकेंड, और दूसरे वाले में 0 को लेगा, इट इज अ वीकेंड। वीकेंड मतलब संडे हो गया। ठीक, अब डिफॉल्ट में क्या किया उसने? टेक्स्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू वीकेंड। अब यहाँ आया टेक्स्ट में क्या आ रहा है? लुकिंग फॉरवर्ड टू वीकेंड। इसको अब रन करके देखते हैं।
टुडे इज मंडे, लुकिंग फॉरवर्ड टू वीकेंड नहीं आएगा क्योंकि पहले इसको कंडीशन मिल जाएगी. इफ डिफॉल्ट इज नॉट द लास्ट केस इन द स्विच ब्लॉक, रिमेंबर टू एंड द डिफॉल्ट केस विथ अ ब्रेक. अगर डिफॉल्ट एंड कंडीशन नहीं होगी तो हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो बाहर निकल आएगा. कॉमन कोड ब्लॉक. Sometime you will want to different switch cases to use the same code. In this case 4, 5 and share the same code block and 0, 6 share the another code block. अब जो कोड होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा. यहाँ पे टेक्स्ट की कोई वैल्यू नहीं है. गेट डे आया, गेट डे में मंडे है तो मंडे का 1 आएगा तो 4, 5 में भी नहीं आएगा और 0, 6 में भी नहीं आएगा. 0 इज संडे, 6 इज सैटरडे. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू वीकेंड आना चाहिए. स्विच डिटेल्स. इफ द मल्टीपल cases matches a case value, first code is selected. If no matching case are found, the program continues to default label. If no default label is found, the program continue the statement after the switch. स्विच के बाद कोई अगर स्टेटमेंट होगा तो उसको कंटिन्यू करेगा. स्ट्रिक्ट कंपैरिजन. हमने स्ट्रिक्ट इक्वल बताया था ना. स्ट्रिक्ट कंपैरिजन क्या करता है, वैल्यू और टाइप दोनों को चेक करता है. स्विच केस यूजेस strict comparison. The value must be of the same type to match. A strict comparison can only be a true if the operand are of same type. है ना, उसकी वैल्यू भी सेम है और टाइप भी सेम है. इन दिस एग्जाम्पल देयर विल बी नो मैच फॉर एक्स. यहाँ पे आए x इज इक्वल टू स्ट्रिंग में 0 लिख रहा है. अब 0 स्ट्रिंग में जब हो जाए तो केस 0 क्या है, नंबर है तो वो नहीं लेगा. 1 है नहीं लेगा. डिफॉल्ट में आएगा नो वैल्यू फाउंड, दे देगा क्योंकि 0 जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में और दिखा देगा. तो करके देखते हैं इसको. देखो यहाँ पे आ रहा है लुकिंग फॉरवर्ड टू वीकेंड, क्योंकि ऊपर की कोई भी कंडीशन नहीं ले रहा था. टुडे इज मंडे, मंडे 1 है और ऊपर जो कंडीशन है वो क्या है, 0 और 6 है और 0 और 6 है तो 1 नहीं आएगा तो लुकिंग फॉरवर्ड टू वीकेंड आ जाएगा. इफ डिफॉल्ट इज नॉट द लास्ट केस, द स्विच ब्लॉक रिमेंबर टू एंड विद डिफॉल्ट केस विद ब्रेक. अब इस केस में क्या है, इसमें भी 4 और 5 नहीं है, 0 से 6 नहीं है तो कोड ब्लॉक का एग्जाम्पल लुकिंग फॉरवर्ड टू वीकेंड आ जाएगा. ठीक है. स्विचिंग डिटेल बताई दिया. इफ मल्टीपल केस मैचेस द केस वैल्यू, द फर्स्ट केस इज सेलेक्टेड. If no matching case are found, the program continues to default label. If no default label is found, the program continues the statement after the switch. Switch के बाद जो भी statement होगा उसको execute करेगा. Strict comparison. The case use strict comparison. The value must be of the same type to match. A strict comparison can only be true if the operands are of same type. In this example, there will be no match for x. कोई भी मैच नहीं है तो क्या देगा, नो वैल्यू फाउंड. तो क्या दे देगा, नो वैल्यू फाउंड. अब देखिए इसको फिर से. ओ हमारा 0 हमारा स्ट्रिंग में है, यहाँ पे नंबर है, ये भी नंबर है तो ये दोनों नहीं मिलेगा. ठीक है. और डिफॉल्ट में नो वैल्यू फाउंड आ जाएगा, है ना. तो इस तरह से आज कंडीशनल स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में ख़त्म हुआ. अगर आपको समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो इफ़ यू लाइक. आई नीड इट. थैंक यू.